Yes, ma'am. Okay. So good morning to all of you. Today we are going Good to morning. yes. Today we are going to continue the same chapter which we were doing yesterday. So we covered number of topics like the water resources of India. India is highly rich in water resources. Like we have number of rivers, more than 10,000 of rivers and their tributaries, small or big. And then we have a very good reserve of underground water, also replenishable underground water. And then we have number of lagoon lakes and backwaters which are found in southern states of India and near the coastal areas. Now next topic which we have to understand. First of all, I had also told you about this pie diagram, like what is the division or the share of surface water and groundwater usage in different sectors of our economy. Like maximum water, both surface water and groundwater is used for agricultural purpose. Like 92% of the groundwater is used for agriculture purpose, and 89% of surface water for agriculture. So how water is used for agriculture? In the form of irrigation. So next topic which we have to start is demand of water for irrigation, because in India the maximum water is utilized for agriculture purpose in the form of irrigation. Now we will see in the examination, they can ask you like what give three reasons why irrigation is necessary for India, or what is irrigation, why it is important for Indian agriculture. So you have to study these points in detail. Like first of all, what is irrigation. Irrigation means to add additional water in the field, in the agricultural area, so that production can be increased. Because the water requirement of different various crops is different. कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको पानी कम चाहिए होता है, एंड देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो. दैट्स व्हाई एडिशनल वाटर इज रिक्वायर्ड, एंड व्हाई दिस एडिशनल वाटर इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन. वही हम सारे रीजंस पढ़ेंगे वन बाय वन. ऑलराइट. क्यों नहीं हम सिर्फ बारिश के पानी से ही सिंचाई करते हैं? व्हाई नॉट ओनली वी आर डिपेंडेंट अपॉन ओनली रेनफॉल? Why is there need for extra water for different sources of water in the form of irrigation? So irrigation is basically to supplement the agricultural production along with rainfall. तो उससे सब रेनफॉल के साथ साथ जो सप्लीमेंट करते हैं हम पानी को, और पानी जो ऐड करते हैं हम खेतों में, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन, विच इज डन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स. Sources of irrigation are different, like tube wells, canals, lakes, ponds. So there are different sources of irrigation. So agricultural field, they get water from two sources. One is natural, that is rainfall, and the other is human made, that is irrigation. So when rainfall water is not sufficient, then it is supplemented by the different sources of irrigation. So now we will study one by one what are the reasons for irrigation in India. First of all, you know that India is an agricultural country, and water is mainly used for irrigation. So in agriculture, water is mainly used for irrigation purpose. Irrigation is needed because first, there is first reason, there is spatial temporal variability in rainfall in the country. So in India, the rainfall is monsoon type of, in India has monsoon type of climate. So we have spatial and temporal variations in rainfall. Like there are certain areas in India which receive heavy rainfall, whereas there are certain areas which remains dry in that period. Like for example, in India, this time is the monsoon time period, from mid of June to July, August, September, mid of September. So this 3 month is a rainy season in India. But entire part of India does not receive equal amount of rainfall. There are certain parts which are facing problem of floods, whereas at the same time there are certain areas which are facing problem of drought. सूखा पड़ा हुआ है, पानी बारिश नहीं हो रही है ज्यादा. इट मीन्स इट इज दिस इज स्पेशल वेरिएशन. स्पेशल मीन्स एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग हमारी रेनफॉल में वेरिएशन है. Whereas because monsoonic rainfall is not equal throughout India, there are variations. Some areas are receiving good amount of rainfall, some areas are receiving a moderate amount of rainfall, and there are certain areas which are receiving deficient rainfall, deficient है वहाँ पे rainfall की. The first reason is spatial variation. Next is temporal variation of rainfall. Temporal means there are only few months of the year in which India is receiving rainfall. Like
as I said, June, July, August and September. So basically only 3 month, वो भी हाफ हम कर लेते हैं, पूरा जून भी नहीं है, पूरा सितंबर भी नहीं है, तो only 3 month we are receiving rainfall, and that too also with a break in the monsoon. अगर आपने 9th में पढ़ा होगा या शायद 11th में पढ़ा होगा, so there is monsoon में there is break in the monsoon. Monsoon rainfall does not take, simultaneously. It does not takes place regularly. हर रोज बारिश नहीं होती है. There is rainfall for 2 or 3 days and then there is gap. So what is this? This is known as break in the monsoon. So there are dry and wet spells. So only 3 months we get rainfall, monsoon rainfall in India, and that too in a spells, dry or wet spell. ब्रेक इन द मानसून. तो हमें रेगुलर बारिश भी नहीं मिलती है. अभी आप देखिए मानसून सीजन तो बहुत पहले से चला, मतलब कि 15 जून से स्टार्ट हो गया था, बट अब जाके थोड़ी सी रेनफॉल जो है प्रॉपर वे में हो रही है. अब देखिए 2-3 दिन गैप होगा, फिर मान लो 4 दिन का भी हो सकता है, फिर ये 15 दिन का भी गैप हो सकता है, तब बारिश हो सकती है. So monsoonic rainfall is not regular. It is there is temporal variation. There are certain months of the year when India receives good rainfall, and other months like it only 3 months we get rainfall, and other जो हमारे 9 month है, जो भी 9 जितने बचे, 12 में से जो भी आप कर लीजिए, जितने भी बचे उसमें क्या है, हमारी बहुत अच्छी रेनफॉल नहीं होती है. इंडिया डज नॉट गेट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स. ठीक है, तो हमारे पास टाइम के हिसाब से भी पानी कम आता है और स्पेशल वेरिएशन तो है ही. So this is the first reason, and you can give example, different examples के through you can explain this point. The large tract of the country are deficient in rainfall and are drought prone, as I said. Northwestern India and Deccan Plateau are the examples. So these areas, Deccan Plateau like central part of India, ये आपका जो drought prone area इंडिया में कौन सा है, अगर हम ये मैप देखें, मैंने कल भी आपको बताया था, so this area, this is the northwestern part of India, including run of Kutch, parts of Haryana and Rajasthan, and then सेंट्रल पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया, दिस एरिया, ये जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा जो है आपका, जहाँ पे आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड, देन आपका जो ये आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ ओडिशा है, देन ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, रायलसीमा, देन कठियावाड़ प्लेट्यू ऑफ ओडिशा. दीज आर ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया बिकॉज दे आर बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न घाट फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, और जो भी मानसूनिक हवाएं आती हैं वो इनसे इनके टकराने से रुक जाती हैं और यहाँ पे एंटर नहीं कर पाती हैं. सो दिस एरिया इज रेन शेडो एरिया वेयर मानसून रेन्स डज नॉट फॉल, एंड ड्यू टू विच दिस रिमेन्स ड्राई एंड ड्रॉट प्रोन फॉर most part of most of the year. So this is the most driest part of India, central part of southern India, and ये तो मैंने अभी थोड़ा सा दिखाया, इसके नीचे भी है आपका, and then parts of Gujarat and northwestern India. So this is the drought prone area, which proves that India, there is spatial and temporal variation in rainfall. Then if we talk about according to time, winter and summer seasons are more or less or dry in most part of the country. Only monsoon season जो होता है आपका, बारिश का जो मौसम होता है, उसी समय रेनफॉल होती है. Hence it is difficult to practice agriculture without assured irrigation during dry seasons. As I said, India has wet and dry spells, and most of the time we does not receive rainfall during winter season and the summer season also. When summer end, then rainy season starts. तो समर सीजन और रेनी सीजन डिफरेंट होता है, तो हमें मैक्सिमम टाइम हमें हमारे इंडिया में बारिश नहीं होती है. तो इस सिचुएशन में इफ वी आर गोइंग टू टोटली डिपेंड अपॉन मानसून रेनफॉल विच इज हाईली वेरिएबल, इट इज हाईली जिसपे हम टोटली डिपेंड नहीं हो सकते हैं, तो हमारा इससे तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इट विल ब्रेक डाउन, इट विल फॉल डाउन. So we have to supplement our agriculture. Along with rainfall, we have to also use irrigation facilities. So now I hope you have understand why irrigation is important for India. Then there are certain areas in India also like West Bengal, Bihar, जहाँ पे बारिश तो होती है अच्छी खासी, but there is also break. As I already explained to you, there is break in the monsoon. यहाँ पे तो ये बताया गया कि कुछ एरियाज ऐसे जहाँ पे बारिश होती नहीं, बहुत कम होती है, बट जहाँ पे बारिश होती है अच्छी खासी लाइक वेस्ट बंगाल एंड बिहार, देयर आर ऑल्सो मानसून इज नॉट रेगुलर. Rainfall does not take each and every single day of for 3 months. There is break in the monsoon, dry and wet spells in agriculture. So यहाँ भी हम totally monsoon के ऊपर dependent नहीं हो सकते हैं. Then third reason is, ये आपका second reason था, dry and wet spell in the monsoon. And then third reason आपका ये है कि variation in the type of crops. See, there are crops are different types like paddy crop, rice crop. It requires huge amount of water. Whereas other crops like jowar, ragi, bajra or wheat, it requires moderate to less amount of water.
So here example is given. The irrigation or the water requirement of different crops is also different. So कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जैसे मैंने अभी जो बताया आपको, जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, उनकी नीड जो है रेनफॉल से भी फुलफिल हो जाती है. बट जो अदर क्रॉप्स हैं लाइक राइस, शुगर केन एंड जूट, दे हैव टू बी सप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. अगर हमने इनका पानी सप्लीमेंट नहीं किया, इफ वी आर ओनली गोइंग टू रिलाई ऑन द रेनफॉल, देन प्रोडक्शन विल बी नॉट अप टू द मार्क. प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, पूरा क्रॉप फेलियर हो जाएगा. ऑलराइट, सो इट इज वेरी हाई विच कैन बी मेट ओनली थ्रू इरिगेशन. सो फर्स्ट रीजन स्पेशल टेम्पोरल वेरिएबिलिटी. सेकेंड रीजन, जहां पे रेनफॉल अच्छी होती भी है वहां भी देयर इज ब्रेक इन द मानसून, देयर आर ड्राई एंड वेट स्पेल्स, सो वी कैन नॉट टोटली डिपेंड ऑन द मानसून रेनफॉल. वी हैव टू सप्लीमेंट आवर एग्रीकल्चर विद द इरिगेशन फैसिलिटीज. देन थर्ड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स which require different amount of rain water requirement. Their water requirement is different. So the crops which are water intensive, which require a large amount of water, they can only be supplemented or they can only be grown with the help of irrigation. These are the three reasons. Then fourth is system of multiple cropping. You know that India has a deficiency of land. We have already we have very small land holding, which we have studied in the intensive subsistence farming. कि इंडिया में there is a huge population and as compared to population, land resource is very less. So fields are very small, they are divided. So we have to achieve intensive production. We have to achieve maximum production from that piece of land only, क्योंकि हमारे पास कोई choice नहीं है. We have limited land and from that limited land only we have to attain maximum production. For that purpose we use the technique of multiple cropping. Multiple cropping means from a single field we use it for a multiple time. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में जितने भी खेत हैं वो मल्टीपल टाइम ही यूज होते हैं. ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जो मल्टीपल टाइम उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग ना हो. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग खरीफ सीजन, ड्यूरिंग मानसून सीजन वी ग्रो राइस इन द फील्ड. Then after it is harvested during October time, again we grow this wheat, which is a rabi crop. Along with wheat उसमें हम पीज है, मटर है या कुछ और भी मतलब छोटी मोटी सब्जियां जो विंटर्स में ग्रो होती हैं वो भी हम ग्रो कर देते हैं. देन जब wheat की हार्वेस्टिंग हो जाती है, देन वी ग्रो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द सेम फील्ड. So one a single field is used as many as time. This technique is known as multiple cropping. ऐसा नहीं हम लोग एक ही खेत पे एक ही बार साल भर में एक ही खेती कर रहे हैं, इसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर ह्यूज पॉपुलेशन and we have to feed a million of billion of population in fact. Unlike in Canada or America where plots are huge in size, आपको पता है वहाँ के खेत बहुत बड़े होते हैं, तो वो साल में एक खेती भी करते हैं. लाइक आपने पढ़ा था ना एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो साल में एक बार वो गेहूं उगा देते हैं क्योंकि उतना ज्यादा हो जाता है तो उनको दोबारा खेती करने की जरूरत नहीं है. बट इंडिया में प्रेशर ज्यादा है पॉपुलेशन का एंड जो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज वेरी स्मॉल. So because of all these factors, irrigation is very much required to increase the agricultural production. So for multiple cropping, only higher production can be achieved if land is irrigated. That's why we have to use wells, we have to use tank or tube wells or canals so that we can supplement our crops with the for water. Further, the HYV seeds. I hope all of you are aware about HYV seeds, high yielding variety of seeds. ये ऐसे बीज होते हैं जो कि अच्छा प्रोडक्शन देते हैं कई गुना. जो नॉर्मल सीड्स होते हैं उनसे काफी अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, बट दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर. मतलब इनमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए. ह्यूज मीन्स कि जितना इनको पानी की अवेलेबिलिटी है, रिक्वायरमेंट है, उतना 100% फुलफिल होना चाहिए. अगर नहीं हुआ तो ये HYV सीड्स आपको उतना बेहतर रिटर्न नहीं दे पाएंगे. So they need regular moisture supply, which is made possible only by a developed irrigation system. So this technique was used during Green Revolution time. जब हमारी देश में हरित क्रांति हुई थी 1960s के टाइम में इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, तो इरिगेशन को जो है काफी जो हर घर में ट्यूबवेल्स पहुंचाए गए थे, सब्सिडी रेट पे फार्मर्स को ट्यूबवेल्स प्रोवाइड किए गए थे, वहां पे नहरें पहुंचाई गई थी खेत खेत तक ताकि जो है प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके. So these are the reasons why irrigation is important for India. We cannot totally rely on our monsoonic rainfall, which is unpredictable. That's why in Punjab, Haryana, and Western UP,
85% ऑफ देयर नेट सोन एरिया इज अंडर इरिगेशन। तो मतलब 100% में से 85% एरिया इनका ऐसा है जिसमें एक्टिव इरिगेशन किया जाता है, मतलब खेती सिंचाई की हेल्प से ही की जाती है। दे डज नॉट डिपेंड अपॉन रेनफॉल, क्योंकि अगर वो रेनफॉल पे डिपेंड, बिकॉज दीज स्टेट्स आर द लाइक फूड प्रोड्यूसर्स फॉर इंडिया, अगर यहाँ पे क्रॉप फेलियर हुआ तो फिर पूरे इंडिया में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट फार्मिंग की जाती है एंड दे आर सप्लीमेंटेड विद इरिगेशन फैसिलिटीज। Wheat and rice are grown mainly with the help of irrigation in these states. Of the total net irrigated area, 76.1% in Punjab and 51.3% in Haryana are irrigated through wells and tube wells. तो आप जैसा आपने देखा पंजाब हरियाणा में जो है मैक्सिमम एरिया इरिगेटेड है, हरियाणा में 50% एरिया है और पंजाब में 76% एरिया है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इंडिया में इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट विच प्रोडक्शन विल नॉट बी अचीव्ड। Now, this map is very important. Many a times, this maps come in the examination, the board examination, and they can ask 3 questions based upon this map. Basically, this map is the Ganga and its tributaries and towns located on them. So this is basically river Ganga, and it has number of tributaries like Yamuna, then other tributaries जिसका नाम नहीं दिया हुआ है. Then these are cities which are located near river Ganga like Allahabad, Varanasi. ठीक है, अब ये मैप देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ वाटर बताया जा रहा है। ऑलराइट, सो हियर गुड क्वालिटी ऑफ वाटर इज फाउंड इन दिस एरिया। यहाँ पे एरो बनाया गया। कैन यू टेल मी विच स्टेट इज दिस वेयर गुड क्वालिटी ऑफ वाटर इन रिवर गंगा कैन बी फाउंड? मैम उत्तराखंड। यस, बिकॉज दिस इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ रिवर गंगा एंड दिस इज नोन एज द अपर रीच ऑफ द रिवर। अपर रीच मतलब जहां से रिवर का ओरिजिन होता है उसको हम अपर रीच कहते हैं। And that part or that stretch of river is always pure in its form, because यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है इन माउंटेनियस एरियाज, ना यहाँ पे ज्यादा आपके इंडस्ट्रीज होती हैं, ना यहाँ पे बहुत एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता है। सो दिस पार्ट ऑफ द रिवर ऑलवेज रिमेन प्योर। मतलब लगभग आप खुद सोच लीजिए, जब रिवर गंगा जब ओरिजिन होता है उसका, और जब तक ये ऋषिकेश में है तब तक इसका पानी प्योर होता है। जैसे ही आपकी ऋषिकेश से निकल के आगे जाएगी हरिद्वार तक ही आप देख लीजिए इसका क्वालिटी बिल्कुल पुअर होना शुरू हो जाता है। और जब तक ये यूपी में पहुंचता है तब तक तो इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि रिवर गंगा एक नाले की फॉर्म में, इट लुक्स लाइक अ ड्रेन। आई हैव सीन रिवर गंगा इन कानपुर एंड इट डजंट लुक लाइक अ रिवर इन एनी फॉर्म। जो पानी है इट लुक्स ब्लैकिश एंड ब्राउनिश इन कलर, कि आप मतलब उसमें पैर तक नहीं रख सकते हो। ये रिवर गंगा की कंडीशन है। रिवर यमुना की अगर हम बात करें दिल्ली में, तो उसमें बिल्कुल आप देखोगे कि उसमें झाग है या फिर उसमें पता नहीं क्या क्या गंदगी बहती रहती है, पूरा पानी ब्लैक कलर में। तो रिवर गंगा और रिवर यमुना प्लेन एरियाज में आते ही जो है ये बिल्कुल पॉल्यूटेड हो जाते हैं। So this question comes in the examination, like why the river remains pure in the upper reaches and it gets polluted in the downstream, in the lower stretch. So you know the reason. First is there is no population or very less population in the upper areas. That's why domestic and sewage जो होता है वो कम होता है, इसलिए river अपने pure form में रहती है। ठीक है, बट एट द मोमेंट रिवर रीचेज द प्लेन एरिया, द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, द ह्यूमन सेटलमेंट इंक्रीजेस, and all the sewage and domestic waste it gradually drains into the river causing pollution. Then second is industrialization. You will not find any industry in the mountainous areas, only green industries are found. आपको कोई भी मतलब जो हैवी इंडस्ट्रीज है जिसमें से स्मोक निकलता है या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आपको ज्यादा यहाँ पे अपर रीचेस में नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, पहले इंडस्ट्रीज। तो देयर इज नो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अपर एरियाज, बट एज इन द प्लेन एरियाज देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज विच यू कैन फाइंड, लाइक कानपुर जो रिवर गंगा के पास है, यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, बट वहाँ पे चमड़े की बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो पूरा का पूरा गंदगी रिवर गंगा में बह के जाता है, और भी इंडस्ट्रीज है वहां पर। ठीक है, तो मतलब जैसे रिवर जो है कोई भी रिवर प्लेन एरिया में पहुंचती है तो उसके पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं आसपास में, तो वो उसका पूरा गंदा पानी उसी में जाता है और रिवर को पॉल्यूट करता है। देन ट्रांसपोर्टेशन का तो खैर उतना कोई रोल नहीं है इसमें, बिकॉज वो एयर पोल्यूशन में ही होता है। तो चलो, तो ये चीजें हैं आपका पॉपुलेशन एंड देन इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर। थर्ड इज द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपको पता है कि वी यूज नंबर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन द एग्रीकल्चर। एंड जैसी बारिश होती है रन ऑफ के थ्रू वो पूरा का पूरा फर्टिलाइजर जो है बह के नदियों में चला जाता है।
तो मैक्सिमम खेती कहाँ होती है? प्लेन एरियाज में होती है, ना कि माउंटेनियस एरियाज में. So agriculture, industrialization, and human population is responsible for causing, river pollution in the downstream or the lower stretch of the river, whereas the upper stretch of the river remains pure in its form. All right. Now here you can see Varanasi आप जाइए. और नॉट ओनली दीज थ्री फैक्टर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो स्पेशली इंडिया में वी कंसिडर आर रिवर्स एज डिटीज एंड गॉडेसेस, बट स्टिल द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड इन इंडिया ओनली. ऑलराइट, रिवर गंगा विच इज द होली रिवर फॉर अस इज द मोस्ट polluted river in the world. If you will see, you can search in the Google. If you can see river Volga, Russia. You can see river Danube of Europe. Yeah, you can see other rivers of European country, or you can see Mississippi of America. All these rivers are so pure. जहाँ भी गहराई नहीं है वहां पे आप उसका फ्लोर भी देख सकते हो. इतनी मतलब इतनी फ्रेश रिवर्स होती है वहां पे. और आप इंडियन रिवर्स को देखिए, छोटी से बड़ी, तुरंत आपको बस पॉलिथीन और हर तरह की गंदगी आपको वहां पे नजर आएगी. बिकॉज ऑफ हमारे रिलीजियस, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो एक्टिविटीज हैं, दे आर कॉजिंग मच हार्म टू आवर रिवर्स. सो यू नो दैट जो हमारे अर्थ पे, मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि हमारे अर्थ पे पानी की कमी तो है ही. आउट ऑफ 71% वाटर, अगर हम 71% को 100% में कन्वर्ट करें, तो 97%, 96% वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज सॉल्टी इन नेचर in oceans and sea, and only 3% water is pure, fresh water. And out of that fresh water, 2% is in the form of ice sheets and glaciers, which is inaccessible for human beings. And just 1% is fresh water, which is available for accessible for human beings in the form of rivers, streams, underground water, and lakes. But we are also polluting these limited resources. So water scarcity to hai, but pollution is the biggest culprit, which has made our water resource as a non-renewable resource. Earlier we used to consider water as a renewable resource because of water cycle process, but now we are considering water as a non-renewable resource because of the negative factors which are working against water. We are continuously overutilizing water. We are wasting water resources, and we are continuously polluting our limited water resources, especially country like India. So in the near future, although we have number of rivers, more than 10,000 rivers, or we are receiving rainfall, or we have underground water resource, but we are going to face water problem sooner or later in the near future, because the speed at which we are polluting our rivers is great, and so we are going to face water problem in in India very soon. So there is need to improve our behavior, and government तो action लेती भी है, करती भी है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है. Now deterioration of water quality. अब ये आप ऑलरेडी जानते हो, वाटर क्वालिटी क्या होती है? प्योरिटी ऑफ वाटर. वाटर कितना प्योर है, इसको हम वाटर क्वालिटी कहते हैं. एंड वाटर क्वालिटी मीन्स बेसिकली व्हेन वाटर इज फ्री ऑफ एनी अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस. अगर आप जो पानी पीते हो उसमें हम थोड़ा सा मिट्टी मिला दें, थोड़ी सी पॉलिथीन मिला दें, या थोड़ा सा कोई कूड़ा कचरा डाल दें, तो क्या आप वो पानी कंज्यूम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. ठीक है ना, क्योंकि वो पानी फिर आपकी नजर में क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड. लेकिन आप सोचिए, जो बारिश का पानी जब आता है ना, और ये कहीं कहीं छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसमें वो पानी भर जाता है. अगर आपको कहा जाए कि आप वो पानी जाके पी लो, तो क्या आप वो पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि उसमें तो काउडंक है, या फिर उसमें तो कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, हम कैसे वो पानी कंज्यूम कर लें. बट द रियलिटी इन इंडिया इज दैट मिलियंस ऑफ पीपल आर कंज्यूमिंग दैट कंटामिनेटेड वाटर. आप बुंदेलखंड आप चले जाइए, केस स्टडी हम एक बार दिखा रहा था DD1 पे, कि वहां पे जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसमें जो पानी भरा होता है वो दे हैव नाउ चेंज इनटू येलो कलर. उसमें काउडंग भरा हुआ है, उसमें पता नहीं क्या क्या गंदगी भरी हुई है, बट लोग उसी को लेकर आते हैं, फिर उसे कपड़े से, कॉटन कपड़े से छानते हैं और उसी को पीते हैं, बिकॉज देयर इज ह्यूज स्कैसिटी ऑफ वाटर इन बुंदेलखंड एंड बघेलखंड एरिया ऑफ इंडिया, विच इज इन द जस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर है. ठीक है, तो वाटर क्वालिटी तब खराब होती है जब उसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं. लाइक आपने जो है मान लो इंडस्ट्रीज का कचरा जा रहा है उसमें, या फिर हम अपने जो सीवेज का उसमें डाल रहे हैं गंदगी, या हम कोई भी अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी चीजें उसमें डिस्पोज कर रहे हैं, सो दे आर डिस्ट्रॉइंग द वाटर क्वालिटी. नाउ देयर इज नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट.
So you already know that we are facing water problem. There is scarcity of problem. There is water pollution in India. So there is urgent need to conserve our water resources. Earlier, as I said, we used to consider water as a renewable resource. But because of our negative activities, because of human activities, we have we have converted our renewable resource into non-renewable resource. So if we are not going to properly utilize our water resources, we are not going to properly manage it, then in the near future we are going to face very big problem. So there is need for sustainable use of our water resource, so that our future generation can also use water resources in a proper way. Now what is water conservation and management? It is now ये जो आपका टॉपिक है ना, यहाँ सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जो है स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करिएगा. Now water conservation and management, you already know when water conservation means to conserve, to store our water resources, या फिर उसका properly manage करना. Management means proper utilization without any wastage. Optimum utilization of water resources is known as management. जब हम अपने वाटर रिसोर्सेज को ऑप्टिमम मैनर में यूज करते हैं, ऑप्टिमम मीन्स मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज, दैट इज नोन एज प्रॉपर मैनेजमेंट. तो हमें वाटर कंजर्व करना है. वाटर कंजर्वेशन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो यू शुड, अगर हम ये ना भी देखें तो आपको ये बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए. वाटर कंजर्वेशन मीन्स टू स्टोर एंड to procure and to conserve our water in such a form so that it can be utilized by the future generation also. And management means to reduce the wastage of water and to use it in a optimum manner. And why water conservation is important? So that it is for sustainable development, for human survival, or for the to maintain ecological balance. Water conservation is important. अगर ये इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं हो पाएगा, ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, ह्यूमन कंजम्पशन नहीं हो पाएगा. तो इसलिए वाटर कंजर्वेशन करना काफी जरूरी है. So both questions can come that what is water conservation and why it is important. Then there is need to encourage watershed development, rainwater harvesting, water recycling and reuse, and conjunctive use of water for sustaining water supply in long run. So these are the techniques through which we can conserve our water resources. Here you can see, इसमें से watershed development is very important, rainwater harvesting is very important, वाटर रिसाइकलिंग तो ये सब आप ऑलरेडी बहुत बार सुन चुके हो कि दैट जो भी पानी, बहुत जगह ऐसा होता भी है, स्पेशली जो आपकी बिग सिटीज हैं वहाँ पे जो है ऐसा होता है. जैसे कि बेंगलोर में मैं जैसे बेंगलोर में रही हूँ, तो वहाँ पे जो हमारे फ्लैट्स थे, तो उसमें जो ये सिस्टम बना हुआ है, जो आपका वो होता है ना, जो भी पानी टॉयलेट्स में यूज किया जाता है नहाने धोने के लिए, उसको वापस वो उसको प्योरीफाई करके, मतलब पूरी मशीन्स लगी हुई है, उसको प्योरीफाई करते हैं एंड देन अगेन उसको जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें उसी पानी को इस्तेमाल किया जाता है. नहाने के लिए नहीं, लेकिन जो टॉयलेटरी पर्पज होता है उसके लिए उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं. सो दिस इज नोन एज रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ वाटर. तो वहां पे जो है दैट इज योर मेगा सिटी है, एक तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी है आपका, जो मेगा सिटी है बेंगलोर. तो वहां पे मतलब काफी ज्यादा पानी की भी प्रॉब्लम है. तो वहां पे रिसाइकलिंग, मतलब इस तरह की चीजें वहां पे बहुत ज्यादा आप देखने को मिलोगे, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, एंड वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा एक तरीका है, जो कि हम नॉर्थ इंडिया में नहीं देखते हैं. सो ये जितनी आपको टेक्निक्स मेंशन की गई है, उसको हम धीरे धीरे 1 बाय 1 पढ़ेंगे. ये थोड़ा सा आप अपना खुद एक इसकी रीडिंग मार लेना. ये दोनों पैराग्राफ मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इतना आता भी नहीं, और लेकिन एक बार आप रीडिंग कर लेना. जैसे इसमें 1 मार्क्स में आता है, द यमुना रिवर इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा. ये कभी कभी पूछते हैं कि यमुना का कौन सा जो स्ट्रेच है वो सबसे पॉल्यूटेड है. ऑलराइट, सो रिवर यमुना जो है सबसे अधिक पॉल्यूटेड है दिल्ली और इटावा के बीच में. इटावा यूपी में है और दिल्ली तो आप जानते ही हो. तो रिवर यमुना दिल्ली से क्रॉस करती है, और इटावा जब तक पहुंचती है तो उसके बीच में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है. ऑन द अदर हैंड द साबरमती अहमदाबाद में पॉल्यूटेड है, गोमती रिवर लखनऊ में पॉल्यूटेड है, काली, अद्यार, कुअम, एंटायर स्ट्रेचेस सब पॉल्यूटेड है. जो छोटी रिवर्स है ना वो ज्यादा पॉल्यूटेड है, क्योंकि बड़ी रिवर्स में तो फिर भी पानी ऐड होता रहता है, लाइक जो पेरिनियल रिवर्स है, लेकिन जो स्मॉल रिवर्स है दे आर मोर पॉल्यूटेड. गंगा एट कानपुर एंड वाराणसी. गंगा रिवर जो है सबसे अधिक पॉल्यूटेड कहाँ है? कानपुर एंड वाराणसी में. जो मैंने अभी आपको बताया था कि कानपुर में तो बिल्कुल ही ब्लैक नजर आती है, लगता ही नहीं कि वो मतलब रिवर गंगा है, आपको उसमें जाने का ही मन नहीं करेगा.
ऑलराइट। सो इसमें जो है फ्लोराइड मिक्स है, हेवी टॉक्सिक मेटल्स मिक्स हैं, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ऑल दीज dangerous chemicals are mixed in the water. Now recycle and reuse of water. Another way through which we can improve fresh water availability is by recycle and reuse. Use of water of lesser quality such as reclaimed waste water would be an attractive option. जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा पानी जैसे कि हमें आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें कहीं घर की सफाई करनी है, हमें कार अपनी वॉश करनी है, या हमें गार्डन में पानी डालना है, या हमारे जो टॉयलेट्स हैं, तो उसके लिए जो लेस क्वालिटी वाइज पानी जो होता है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फायर फाइटिंग के लिए, या इंडस्ट्रीज की जो मशीन्स होती हैं उनको ठंडा करने के लिए, और जो प्योर वाटर है उसे हम पीने के लिए और अदर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं. सिमिलरली इन अर्बन एरियाज वाटर आफ्टर बाथिंग एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स कैन बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग. ये सब तो आप जानते हैं जो हम छोटी चीजें घर में भी करते हैं. वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग व्हीकल्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर गार्डनिंग पर्पज. दिस वुड कंजर्व बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड for drinking purpose. Currently, recycling of water is practiced on a limited scale. However, there is enormous scope for replenishing water through recycling. See, all these points you already know that for gardening we should not use fresh water. For washing car or for washing any other thing for your house, fresh water should not be used. We should always conserve or store fresh water for drinking purpose. बिकॉज हम लोग देखो, जैसे हम लोग यहाँ ऋषिकेश में या हम नॉर्थ इंडिया में, तो हमें इतनी प्रॉब्लम पता नहीं चलती है. बट इफ यू विल गो टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज और मेगा सिटीज लाइक मुंबई, और यू विल गो टू बेंगलोर, एज आई सेड हैदराबाद, ऐसे सब बड़े बड़े शहरों में आप जाओगे ना, तो वहां पे आपको पता है कि एक टैंकर आता है तो उसमें 100 लोग उसके पीछे भागते हैं पानी के लिए, एक बकेट पानी के लिए. एक बकेट पानी में, दो बकेट पानी में एक फैमिली पूरा गुजारा करती है एक दिन. लेकिन क्योंकि हमारे पास वाटर अब, लेकिन मैक्सिमम एरियाज में क्या है, जैसे यूपी बिहार है तो हम लोग के पास नदियां हैं, तो पानी रेगुलर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इतना सोचते नहीं है. हमारे अंदर वो चीज नहीं ना, जो इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी क्या होती है कि शरीर ऐसी चीज करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो कि हम बाद में बीमारी ना पड़े. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तब हम योगा करते हैं या कुछ और करते हैं, फिर हम दवाइयां लेते हैं. तो प्रॉब्लम ये है, हमें बीमार पड़ने से पहले ही अपने आप को इतना सिक्योर करना चाहिए कि बीमारी ना पड़े. उसी तरह से क्या होता है कि हमें पता है कि यार बारिश हो रही है, टैप पे पानी आ ही रहा है, तो कौन इतनी मेहनत करे, कौन जाए हमें गार्डन में पानी डालना है, तो हम क्या कहाँ से हम पानी जो है जो भी काम हो रहा है उसमें से पानी बचाएं, फिर हम जाके डालें. तो इतना एफर्ट क्यों करें जब पानी हमारे पास आ ही रहा है. तो जिन एरियाज में पानी है उस एरिया में लोग अभी से सिक्योर होके नहीं चल रहे हैं, कि हम पहले से इंतजाम करें कि आगे चलकर भी हमारे सामने ये प्रॉब्लम ना आए. जब प्रॉब्लम उन एरियाज में भी आ जाएगी जहां पे आज सब कुछ ठीक है, तब जाके सब लोग जो है ये सब चीजें स्टार्ट करेंगे. लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है. आप सबको पता है कि छत पे हम पीवीसी पाइप लगा के पानी को, रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं. हम में से कोई नहीं करता होगा मुझे लगता है. सिर्फ तमिलनाडु में ये चीज कंपलसरी है, आंध्र प्रदेश में लोग करते हैं. ठीक है, तो वहां पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग. वी आर नॉट फेसिंग एट द मोमेंट, सो वी आर नॉट वी आर जस्ट नेग्लेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स. जब तो हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे पानी को मिसयूज करते करते कि सच में हमारे एरिया में भी पानी की कमी हो जाएगी, तब हम जो है ये सारी चीजें यूज करना शुरू करेंगे, लाइक रिसाइकलिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग. लेकिन हम पहले से नहीं कर रहे हैं कि चलो ठीक है हमारे पास रिवर है, बारिश भी यहाँ पे ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन हम वो नौबत ही क्यों आने दें, क्यों ना हम अभी से मतलब ठीक हो जाए, अभी से हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, रिसाइकलिंग करें. लेकिन जब प्रॉब्लम आ जाएगी तब हम उस चीज को करना स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक, कि जब प्रॉब्लम आती है तब हम स्टार्ट करते हैं, हम पहले से ही सिक्योर नहीं होते. तो रिसाइकलिंग एंड रीयूज जो है काफी इंपॉर्टेंट, जो हम अपने घरों में भी आसानी से कर सकते हैं. नाउ वाटरशेड मैनेजमेंट. वाटरशेड मैनेजमेंट इट इज़ ए बिग टॉपिक, और ये मैं कल ही करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं बहुत जो है काफ़ी 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही. तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, एंड एक और टॉपिक है आपका नेशनल वाटर पॉलिसी ऑफ इंडिया. सो दीज 3 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डू टुमारो. If there is any doubt in the the topics which I have taught you today, you can ask me right now. But I don't think that this is a very big any problem, because this is a very common topic about water resources. So but then also if you have any problem, you can ask me.